Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam and in this video I am going to share my own recent interview experience with ICICI Bank. So I will share the interview process along with the questions which were asked during interview. First of all, I don't have any prior banking experience and I've never done bank audit, concurrent audit during my articleship tenure, which actually made me to wonder how my CV got shortlisted by ICICI Bank, which I got to know on the day of interview itself when the interviewer asked me the first question. तब मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि क्यों मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एंड दोज थिंग्स वर those keywords, key terms which are mentioned in my resume, which are actually banking terms. So here I would suggest you all to use those key terms, keywords which are generally used in the industry in your resume, so that recruiter जब भी उस key term को search करे तो वो आपके resume मिले और आपका resume shortlist होने के chances बढ़ जाएं. So somewhere in the past I filled the application form on their career section on ICICI's website. And then after 2 months I got an email through which I got to know about their mass hiring, mass recruitment. So उस मेल में नॉर्मल चीज़ें थी कि हमारे डेटाबेस में आपका रिज्यूमे मिला एंड उन्होंने अपने हायरिंग प्रोसेस के बारे में लिखा था उसमें, और उस मेल में लिखा था हमें अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी थी. 2 डेट्स दी गई थी इंटरव्यू के लिए एंड टाइम स्लॉट्स भी 2 दिए गए थे. तो उसमें से हमें अपनी अवेलेबिलिटी उनको अपना कंफर्मेशन देना था फॉर द इंटरव्यू. Then I gave my confirmation for my availability and selected the time slot. Then उसके next day मुझे because interview जो है वो 6th और 7th का रखा गया था कि 6th को और 7th को 2 slots थे available. So मैंने 7th का select किया था. So 6th को मुझे interview का schedule आ गया एंड बट मेरे को इंटरव्यू का लिंक नहीं आया था. बट उस मेल में ये लिखा था कि हमें इंटरव्यू अटेंड करने से पहले OPQ टेस्ट, ऑक्यूपेशन पर्सनालिटी क्वेश्चन टेस्ट हमें अटेंड करना है और उसको सबमिट करना है, तभी हम इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो मुझे कॉल भी आया था ICICI बैंक से, बट मैंने वो मिस कर दिया. देन मैंने ड्रॉप कर दिया मेल एंड देन फाइनली मुझे रात को 12 बजे मेरे को मेल आ गया कि नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू है. उसका लिंक आ गया था, वेबएक्स का लिंक आ गया था. सो जो 7 अगस्त को मुझे वेबएक्स का लिंक आ गया था. मॉर्निंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कि इंटरव्यू में वहाँ मीटिंग में बैठे हुए थे. सो जो HR थी उन्होंने हमें 1-to-1 मीटिंग रूम में कनेक्ट किया. सो ऑनलाइन इंटरव्यूज आजकल इसी तरीके से हो रहे हैं बिकॉज फिजिकल इंटरव्यूज तो बहुत ही कम ही हो रहे हैं. देन शी कनेक्टेड टू द मीटिंग रूम 1 by 1 जैसे जैसे इनका नंबर आ रहा था. So then she connected there and there were 2 people in the meeting room. One was from HR team and one who was going to take technical round. Okay, so that HR started with, and then he first introduced himself, then asked me about myself, and then he introduced the person who was going to take my technical round. So she was regional head थी वो जिन्होंने interview मेरा technical round लिया. Okay, so she started with saying कि Poonam, I can see in your resume that you have good experience of banking. So she started her question with first term asking what is LC, letter of credit. देन सडनली मुझे रियलाइज हो गया कि क्यों आया, बिकॉज वो मेंशन मैंने किया हुआ था अपने रिज्यूमे में. एंड यू नो बिकॉज इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव डन सम वर्क फॉर LC एंड फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन. सो इसलिए मैंने उसे मेंशन किया था अपने रिज्यूमे में. एंड जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे वो सारे के सारे रिज्यूमे से ही ड्रॉन थे. सो आई स्टार्टेड गिविंग आंसर फॉर व्हाट इज LC. देन शी लाइक आई वाज स्टकिंग इन बिटवीन. देन शी सजेस्टेड मी कि you don't need to be very technical in your language. You can be like you can tell us what it means in the very simple language also. So then I finally felt relief, and then she asked her next question that was related to forex, which was also drawn from my resume. So forex related transactions के बारे में पूछा and then ये पूछा कि forex risk को हम कैसे mitigate कर सकते हैं. Then I told her about the contracts and all. Then she asked about those contracts. ठीक है, जैसे कि hedging और forward rate के बारे में बोला तो उनके ऊपर फिर questions she asked. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आया रेशियो एनालिसिस. व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज फाइनेंशियल रेशियोज. सो इसके बारे में उनका क्वेश्चन था बिकॉज वो भी मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था. सो जैसे जैसे उसके बाद जो भी क्वेश्चंस ड्रॉन हुए रेशियो के ऊपर, वो इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने आंसर्स में उनको इंक्लूड कर रखा था. लाइक अगर मैंने जो भी रेशियो एनालिसिस में एग्जाम्पल्स दिए थे जिन भी रेशियोज के, तो उन्होंने उसी रेशियो के बारे में पूछा. एंड देन आई ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट आइडियल रेशियो. तो उन्होंने ये भी पूछा कि व्हाट आर आइडियल रेशियोज, इसके लिए कितना होना चाहिए. सो ये वाले क्वेश्चन थे जो कि मेरे आंसर के ऊपर ही थे. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी कि व्हाट इज मैट. ठीक है, मैट प्रोविजंस क्या है, बिकॉज वो भी मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखा था. तो मैट के बारे में शी आस्क्ड. देन इन बिटवीन शी गॉट सम कॉल फ्रॉम समवेयर एंड देन वो उस कॉल में एंगेज हो गई. आई थॉट कि जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है, बट आई स्टिल कंटिन्यूड विद माई आंसर विदाउट थिंकिंग कि वो सुन रही है या नहीं सुन रही है. आई स्टिल कंटिन्यूड. So then she joined and then say, oh, I got a call, so I had to attend, that was important. So then finally वो इंटरव्यू जो है वो वहाँ पे ख़त्म भी हो गया था. ओके, सो टेक्निकल यहाँ तक खत्म हो गया था. देन उसके बाद शी पास्ड इट टू द HR एंड देन ही स्टार्टेड हिज बिहेवियरल क्वेश्चंस.
सो HR ने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे एज कम्पेयर टू टेक्निकल राउंड. So HR के जो क्वेश्चंस थे वो आई एम गोना टेल यू, एंड दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू माय वर्क एक्सपीरियंस एंड माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, देन ही आस्क्ड मी अबाउट रीजन फॉर माय जॉब चेंज. जितने भी पास्ट में मैंने जॉब चेंज किए हैं उन सबके क्या रीजंस थे उसके बारे में डिटेल में बताया. देन उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट माय जॉब लोकेशन प्रेफरेंसेस. ओके, देन ही आस्क्ड मी व्हाट डू यू नो अबाउट ICICI बैंक. ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट डू यू नो अबाउट ICICI बैंक एंड इसका रेवेन्यू कितना था लास्ट. Okay, so इसके बारे में जब भी आंसर दिया, then he asked the source for this information and then he asked me whether you have visited our website. I said yes, and for this and this that I visited your website. Okay, then next question he asked me about my achievements I had during my last organizations. ठीक है, मेरे major contributions क्या थे मेरे last organizations में, ठीक है, and what value addition I did in my last organization. दोनों जो भी मेरे जितने भी previous organization. So his next question was, why do you think that you are suitable for this job role? So I explained him so and so reasons. Okay, so then he asked me how many teams or how many people you have worked with. Okay, and then he told me, basically asked me, are you okay with 6 days working in a week and we have only 2 Saturdays off? So are you okay with this? Okay, so I said him yes, of course. फाइनली इस तरीके से ये HR राउंड भी खत्म हो गया. देन आई लेफ्ट द मीटिंग रूम एंड जो बाहर की जो ऑर्गेनाइजर थी, जो HR ऑर्गेनाइजर थी, उन्होंने बोला कि यू कैन लीव फॉर द डे. बाकी उन्होंने बता दिया कि दैट जो भी सिलेक्शन होगा या फिर जो भी आगे का प्रोसेस होगा वी विल गेट एन ईमेल या फिर हमें कॉल आ जाएगा. ओके, सो आई वेटेड बिकॉज मैं हर डेली चेक करती थी बिकॉज चैट बॉट के थ्रू आप अपने एप्लीकेशन का प्रोसेस जान सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है. ओके, सो जो मेरा जो एप्लीकेशन था वो इंटरव्यू कंडक्टेड ये स्टेटस दिखा रहा था. ओके, 1 महीने तक यही था. ओके, देन लाइक आई वाज स्टिल गेटिंग वाइब कि हाँ वो चांसेस है बिकॉज क्योंकि रिजेक्ट नहीं हुआ था. सो मुझे 4 सितंबर को मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करने थे. वैसे तो उस दिन भी बोला गया था कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ICICI की करियर वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, बट मैंने उसको छोड़ दिया था. मुझे लगा कि छोड़ो उसको. सो उस दिन मुझे 4 सितंबर को मेल आया कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हमें आपका एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस करने के लिए वी नीड दिस डॉक्यूमेंट्स, सो अटैच this on this career section portal. Okay, so I did that and जो भी coordinate करवा रही थी मुझे सारा application process वो सब documents complete करवाया. and then finally मुझे नेक्स्ट डे को 5 सितंबर को इवनिंग में 7 PM के अराउंड मुझे ऑफर लेटर मेल पर आ गया. सो आई गॉट द ऑफर लेटर बट आई कुडंट ज्वाइन बिकॉज जो लोकेशन थी वो बैंगलोर थी एंड दे आस्क्ड मी टू ज्वाइन ऑन 15 सितंबर. बट मेरे लिए दैट वाज नॉट फीजिबल कि मैं बैंगलोर जाऊँ 15 सितंबर तक. एंड ऑफर लेटर का जो हमें एक्सेप्टेंस है वो विदिन 7 डेज देना था. ओके, सो 7 डेज जब पूरे होने वाले थे देन आई गॉट एन ईमेल कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, हमें ये डॉक्यूमेंट्स ये प्रोसेस कंप्लीट कराना है बिफोर ज्वाइनिंग. सो उसमें आई आस्क्ड हर कि क्या देयर इज़ अ चांस फॉर चेंज ऑफ लोकेशन एंड ज्वाइनिंग डेट. देन शी टोल्ड मी कि जो जॉब लोकेशन है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, बट जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है दैट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 more week. बट 1 वीक से भी क्या हो जाता. ओके, सो आई डिनाइड दैट ऑफर. बेसिकली मतलब मैंने उसको मेल को आगे रिस्पॉन्स ही नहीं किया. ठीक है, so that means applicant is not interested. उन्होंने ये मेरा स्टेटस डाल दिया. Okay, so talking about offer letter, I was offered as a job role as a manager in business loan department at Bangalore location. Okay, and the salary offered, the compensation was I will not tell you the exact figure, but that was 10.31% of hike on my last one salary, which was not एज मच अल्योरिंग. जो पैकेज था वो भी इतना अल्योरिंग नहीं था कि आप मतलब बिल्कुल भाग के बैंगलोर ही चले जाओ. सो जो पैकेज था उसमें फिक्स कंपोनेंट था एंड वेरिएबल कंपोनेंट था. सो मेरा जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मेरा टोटली फिक्स था एंड जो यहाँ पे वेरिएबल इंक्लूड करके बन रहा था वो उसके ऊपर 10.31% का हाइक था, विच वॉज नॉट मच अल्योरिंग बिकॉज अगर वेरिएबल पार्ट को हटा दो तो जो फिक्स्ड है वो मेरा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पेंसेशन भी से भी कम पड़ता. एंड जो वेरिएबल होता है उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है वो फुलफिल करनी होती है तभी जाके आपको वेरिएबल कंपोनेंट मिलता है. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट जॉइन बिकॉज इतना अट्रैक्टिव नहीं था, ऑल्दो आई वेटेड इट फॉर सो लॉन्ग. ओके, सो सम टॉकिंग अबाउट सम जर्नल इंटरव्यू क्वेश्चंस आज पर ICICI बैंक. मतलब जो मैंने थे वो रिज्यूमे स्पेसिफिक थे, सो दैट कैन बी बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे ऑल्सो. सो इसलिए आपको अपना रिज्यूमे गो थ्रू करना है. उसके अलावा कुछ जनरल क्वेश्चंस है विच दे कैन आस्क और विच कुड अराइज इन बिटवीन व्हेन यू आर गिविंग आंसर्स. ओके, सो उसमें सबसे पहला आता है लाइक मैंने क्रेडिट प्रोफाइल का जो वीडियो शेयर किया था इंटरव्यू क्वेश्चंस का, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो जनरली पूछे ही जाते हैं. सो यू कैन रेफर दैट वीडियो. उसके अलावा 1-2 और पॉइंट्स आई वुड लाइक टू ऐड एंड दैट आर, इसमें आपको प्रिपेयर करना है लोन एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप. ठीक है, आप डिफरेंस बिटवीन क्या होता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी,
ड्यू डिलीजेंस कैसे करते हैं किसी पर्सन का, या फिर आप किसी बिजनेस को कैसे वेरीफाई करेंगे, एंड कैपेसिटी रेशोज़ क्या होते हैं, एंड क्रेडिट एजेंसीज क्या होती हैं, व्हाट डू दे डू, कितने हैं, कौन कौन है। सो क्रेडिट एजेंसीज वाला जो है ये क्वेश्चन, ये मैंने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले वीडियो में मेंशन किया था। ओके, सो दीज आर ऑल दोज बेसिक क्वेश्चन जो कि जनरली पूछ जाते हैं। ओके, so that's all about this video. I hope this video was informative, and in case you like this video, then do give it a thumbs up and make sure you subscribe to my channel. So bye, take care, see you in that.